Welcome to my maths class. In last lecture, I started exercise 6.1, the topic tangent and normals. We did questions up to 13. Now I'm starting with question number 14. There are 5 parts. I am taking only 2 parts, second part and fifth part. Let us start second part. In this question you have been given this equation of the curve and you are to find out the equation of tangent as well as equation of normal at this whatever the points are given. यानी इस कर्व का इस पॉइंट पर आपका टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, यू आर टू फाइंड आउट एंड सिमिलरली इन दिस केस. ठीक है, चलिए पहले इसको शुरू करते हैं. तो इसमें क्या करते हैं, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है. एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? इफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू समथिंग, देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy by dx. हाँ जी, तो दिस इज योर कर्व. स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? dy by dx करके. तो dy by dx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 13 2s are 26x minus 10. Okay, now slope of tangent at this particular point means you at का मतलब आप ये लगा के चलो your point of contact is given to you, that is 1 3. तो आपने इस point पर point of contact पर आपका slope of tangent क्या, put the value of x and y की जरूरत है नहीं, x की वैल्यू 1 यहाँ पर substitute किया. 4 into 1 cube minus 18 1 square and like this, and we got slope of the tangent at this point is 2. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए, हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल के तो साथ के साथ ही वी आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ नॉर्मल आल्सो. स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है नेगेटिव का रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिए. -1/m दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दैट इज -1/2. स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट y minus y naught is equal to m into x naught, x minus x naught. This is the equation of a line. Tangent is also a line. तो अब यहाँ पर this is your x naught y naught, जहाँ से कि टेंजेंट पास कर रहा है. अगर ये कर्व है तो ये जो कर्व है ये x नॉट y नॉट से पास कर रहा है, और टेंजेंट b क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका x नॉट y नॉट ये 1 3 गिवन है आपको. तो आपके पास यानी कि लाइन है जो ये टेंजेंट है उसका एक पॉइंट पता है, दैट इज योर x नॉट y नॉट. And the slope of this tangent is 2. This is the slope of the tangent 2m. यहाँ पर पुट कर दीजिए x minus x naught that is 1. Simplified, this is equation of your tangent. लेकिन अब आता है equation of normal निकालने के लिए. Now second part is equation of normal. इसी में this is a part ले लीजिए, this is your a part, this is your b part. Equation of normal at point, इसी point पर normal भी draw करना है आपको. तो नॉर्मल एट पॉइंट 1 3, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m डैश x माइनस x नॉट. क्यों m डैश? मैंने आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय m डैश, दैट्स व्हाई. सो नाउ y माइनस y नॉट इज 3, m डैश इज -1/2 and x minus x naught is 1. This is 2y minus 6 is equal to minus x plus 2. So 2y plus x is equal to 8. This is your equation of the normal. This was not 2, this is 1. ये आपका minus x plus 1. So this minus x will shift to this side, so it is 7. And the students, in this question, what is the form of this equation of the curve? पहले तो identify कीजिए कौन सी form है. अब देखिए x is given in terms of t, y is given in terms of t. It means x and y are not directly related with each other. They are related with the help of one more variable, that is that type of form is known as the parametric form. And now we are to find out the slope of tangent of this type of curve is given to you now. तो इसमें क्या करेंगे, dx by dt because x is given in terms of t. So dx by dt, dy by dt, then dy by dx. देन स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो dx by dt क्या हो जाएगा, x है cos t तो dx by dt minus sin t, y है sin t तो dy by dt cos t. Now we want to find out the slope of the tangent, that is dy by dx, and dy by dx would be slope of the tangent is equal to
dy by dx that is equal to dy by dt upon dx by dt. Put the values and that is minus cot t. But you are to find out the tangent and the normal at t is equal to pi by 4. Therefore, slope of tangent at t is equal to pi by 4. Put the value of t that is pi by 4. So minus cot pi by 4. Or value of cot pi by 4 is 1. So this is minus 1. So slope of tangent कितना आया? minus 1. And we know that the slope of the normal is the reciprocal of the negative of this slope of tangent. तो ये जब minus 1 है इसका reciprocal करके sign change कर दीजिए तो 1 आ गया. This is the slope of the normal. अब हमें ना यहाँ पर पॉइंट जो है, देखो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए. एक तो स्लोप, एक चाहिए स्लोप और एक चाहिए पॉइंट विच लाइज ऑन द टेंजेंट. ठीक है, स्लोप तो हमने टेंजेंट का निकाल लिया, अब पॉइंट तो हमें नहीं दिया यहाँ पर. In the last question the point was given, but in this question point is not given directly, but it is given indirectly. You can see here it is given x is equal to cos t and y is equal to sin t. So put the value of t pi by 4 to get that point. यहाँ पर put करें तो x की वैल्यू आ गई 1 by root 2, t की वैल्यू pi by 4. यहाँ कीजिए sin pi by 4 की वैल्यू, y की भी वैल्यू आ गई. तो आपके पास x naught y naught both you have obtained, that is 1 by root 2, 1 by root 2. So indirectly the point was also given and we have calculated that. What is that? So now equation of the tangent at this point you are to find. So equation of the tangent y minus y naught is equal to m into x minus x naught. Put the values of x naught and y naught and the value of m means the slope of the tangent, and this is minus x, take it to this side, minus 1 by root when it will shift to this side, plus 1 by root 2. This is 1 by root 2 plus 1 by root 2 means 2 by root 2, and this 2 will be cancelled by root 2. So this is our equation of tangent. Now what is left? Equation of normal. So now equation of normal, that is y minus y naught is equal to m dash x minus x naught. So y minus y naught is 1 by root 2, m dash. What is m dash? Now this is 1. X minus 1 by root 2. So what is this? Y minus 1 by root 2 is equal to x minus 1 by root 2. So this is cancelled. So y is equal to x. This is your equation of tangent. Sorry, normal. And students, in this question number 15, it is given that you are to find the equation of the tangent line to this curve, which is parallel to this line. पहले हम ये करेंगे, फिर इस पार्ट को लिखेंगे. तो आपको बोला गया कि एक कर्व है, उस कर्व पर ये एक, उस कर्व के यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, and you are to find out the tangent. ये जो tangent है आपका वो इस लाइन के पैरेलल है. ये लाइन आपको दी हुई है फर्स्ट पार्ट के लिए 2x minus y plus 9 equal to 0, और आपको ये टेंजेंट निकालना है. ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन अभी मैंने बताया था. what two things are required to find the equation of the tangent? पहली स्लोप, दूसरा पॉइंट. हमें तो और कुछ चीज नहीं दी, बस यही दिया हुआ है. लेकिन स्लोप आपको इनडायरेक्टली गिवन है. कैसे? बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल. अगर आपको इसकी स्लोप पता है तो इसकी भी तो सेम होगी, बिकॉज पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप. तो इसकी स्लोप निकाल के यू पुट इट, यू इक्वेट इट, और नाउ आफ्टर दिस यू आर टू फाइंड आउट वन पॉइंट ऑल्सो. ठीक है, चलिए पहले शुरू तो करते हैं इसको. ठीक है, हाँ जी. तो अब इसमें कर्व इज गिवन दिस, वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विद द हेल्प ऑफ this curve also by differentiating it with respect to x. So given curve is this, therefore slope of tangent will be dy by dx is equal to 2x minus 2. So dy by dx is the slope of tangent we have calculated. But we have been given one more condition. According to that, one line is given 2x minus y plus 9 equal to 0, which is parallel to the tangent that as I have shown in the figure. So I need to find out the slope of that line also. And if I compare it, this line with the general form of line ax plus by plus c is equal to 0, then the slope of line is equal to minus a upon b. A is coefficient of x and b is the coefficient of y.
So minus a upon b means minus 2 upon minus 1. So that is 2. So your slope of the given line is 2. But according to the question, this given line is parallel to the tangent. Therefore, slope of the tangent will be equal to the slope of the line. Therefore, slope of the tangent is equal to slope of the line, that is 2. And we have found the slope of the line from here also. This is also slope of line and this is also slope of line. So we can equate these two. So by 1 and 2, we can write 2x minus 2 is equal to 2. So 2x is equal to 4. So this implies x is equal to 2. Okay, use it in the curve. Use it here in the curve. I am naming it star. So use it in the equation of curve. That is your star. So y is equal to 2 square minus 2 into 2 plus 7. 4 minus 4 cancel, y is equal to 7. Therefore point of contact, कभी भी ऐसे आता है, आप x निकालते हैं, फिर कर्व में पुट करते हैं, then you find the point of contact. We have already done in our previous questions. तो point of contact निकाला हमने. Point of contact means x naught, y naught we have calculated. That is your x is 2 and y is 7. So that is 2, 7. So now equation of the tangent. देखो अब हमारे पास slope of tangent भी आ गई, that is equal to 2. Therefore m is equal to 2 भी है आपके पास. And x naught y naught. वही चीज जो दो चीजें मैंने आपको बताई थी equation of tangent के लिए. आपकी equation of tangent निकालने के लिए दो चीजें चाहिए. One is the slope, the other one is the point. ठीक है, slope हमारे पास है, point हमारे पास है. So equation of tangent is equal to y minus y naught is equal to m into x minus x naught. Y minus 7 is equal to 2x minus 2 because your slope is also 2. So y minus 7 is equal to 2x minus 4. So y minus 2x is equal to 3. This is your equation of the tangent. हाँ जी, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी एनसीईआरटी बुक में, the question number 19 is find the points on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to 0 at which the tangents are parallel to x axis. Tangent parallel to x axis means dy by dx is equal to 0. तो आप वहाँ पर dy by dx is equal to 0 निकाल कर, ठीक है, आप वहाँ पर x की वैल्यू निकालिए. ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के लिए. आप इसको कंप्लीट खुद कीजिए. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन कर्व. हमें तो dy by dx निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है. सो दिस इज 2x, दिस इज 2y dy by dx माइनस 2 इक्वल टू 0. सो 2y dy by dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x. तो 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ से. तो दिस इज dy by dx is equal to 2 common 1 minus x upon 2y. So this is your slope of the tangent. Now it is given according to question. This is your slope of tangent and according to question tangent is parallel to x axis. तो जब भी tangent parallel to x axis होता है तो फिर क्या होता है? Therefore slope of tangent क्या हो जाएगा? 0. Therefore slope of tangent is equal to 0. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला? 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0. और कोई एक फ्रैक्शन तब 0 होता है जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है. तो x आपके पास 1 आ गया. यूज दिस वैल्यू ऑफ x हियर इन दिस इक्वेशन नंबर 1. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो. तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा उसमें. हाँ जी, 17th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है. उसमें दिया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक कर्व दिया है. इस पर आपको पॉइंट्स निकालने हैं. एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपको दिया है दैट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट. दैट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y गिवन है. ये गिवन है हमें. चलिए पहले हम यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया यहाँ से? दैट इज इक्वल टू dy by dx 3x स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा 2 है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट y है और यहाँ पर ये है. तो बाय 2 and 3 क्या होगा? बाय 2 and 3 ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया. अब ये देखिए, दिस इज योर 4
ये भी y है, ये भी y है, तो by 1 and 4 x क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो एक आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा, एक सॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए, x स्क्वायर 0 या फिर x माइनस 1 0, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 यूज। अब हमें तो पॉइंट कर्व का निकालना है ना, जहां पर आपका इस कर्व पर आपका टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल कहाँ होगा। तो ऐसे आपके पॉइंट्स निकालने हैं आपको। तो आपको कर्व पे जो x की वैल्यू आई है वो कर्व में ही पुट करनी है, ठीक है। यूज इट इन 1। तो जब आपका x 0 है तो y कितना आया, 0। जब x 1 है तो y कितना आया, x का क्यूब यानी कि 1। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आया, 0 0, और यहाँ पॉइंट क्या आया आपका 1 1। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। हाँ जी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। ये हमने बीच में छोड़ दिया था, नहीं किया था। चलिए तो सेकेंड पार्ट अब हम करते हैं of question number 15. It's given, find the equation of the tangent line to this curve which is perpendicular to this line. Let us draw the figure. देखिए इसने बोला कि आपको टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये आपकी टेंजेंट ये लाइन है मेरी, ये लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर। ये लाइन दी हुई है 5x माइनस 15x 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। ये लाइन दी है। अब इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट निकालना है। इसके परपेंडिकुलर मींस ये टेंजेंट निकालना है। तो अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसकी स्लोप निकालिए, इसकी तो अपने आप आ गई नेगेटिव का रेसिप्रोकल, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो एक की स्लोप निकाल के दूसरे की निकालनी बहुत इजी है, रेसिप्रोकल करके उसका नेगेटिव कर दो, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और उसके बाद पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट निकालने का वही तरीका जो पहले किया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से भी निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से भी आएगी और उन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको पॉइंट भी आ जाएगा। चलो लेट अस स्टार्ट इट। ओके, हाँ जी, तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, y is equal to x square minus 2x plus 7, slope of tangent dy by dx। slope of tangent क्या होगा, that is dy by dx is equal to x minus 2। now you have been given this line 5y minus 15x is equal to 13। let us try to write it in the general form, that is ax plus by plus c is equal to 0। तो minus 15x plus 5y minus 13 is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, and slope of the line is minus a upon b। when I put the values of a and b from here, then the slope of the line is 3। now according to the question, tangent and line are perpendicular to each other, therefore slope of the tangent will be reciprocal of the negative of the slope of the line। ठीक है, तो जो भी इसका स्लोप आया है आपका लाइन का उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिए, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेट दीज टू, आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंप्लीफाई किया गया। अब इसको आपने पुट करना है 1 में। कर्व का पॉइंट चाहिए ना आपको जहाँ पर टेंजेंट है, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए x निकाल के पुट दैट वैल्यू इन द कर्व। ठीक है, आपने यू हैव पुट इट हियर x की वैल्यू इन द कर्व, तो आपके पास y वैल्यू भी आ गई। तो आपके पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। क्या आई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास x0 y0, ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला लगाइए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए, y माइनस y0 इज इक्वल टू m। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आई थी ना, ये -1/3 है, that is m x minus x0, y minus y0 is 217/36 is equal to m, slope of the tangent ultimately solve करके -1/3 x minus 5/6, that is your x0। simplify it and get the equation of the tangent। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 16 है कि ये कर्व है एक आपको गिवन है और आपको बोला गया है कि एट पॉइंट x is equal to 2 एंड x is equal to -2, इन दो पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पर, वो दोनों पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या करना है, पैरेलल का मतलब स्लोप जो है उनकी इक्वल होगी। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए dy by dx, एंड
दैट इज इक्वल टू 21x स्क्वायर। अब एक बारी आप x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 निकल आएगा, और एक बारी x इज इक्वल टू -2 पुट कीजिए क्योंकि स्क्वायर है तो सेम ही आंसर आएगा। इन बोथ द केसेस द स्लोप ऑफ टेंजेंट at x is equal to 2 and at x is equal to -2 would come out same. It means when their slopes are same, therefore this tangent would be parallel to each other. And the students, this is question number 18. This is very very important question क्योंकि इसमें आप देखिए क्या लिखा है, पहले तो समझिए। For this curve, find all the points at which means at का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब आपको फाइंड बोला है तो इसका मतलब एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो निकालना है आपको, ठीक है। तो एट दिस मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द टेंजेंट पासेस थ्रू द रीजन। टेंजेंट पास कर रहा है रीजन से, ये जो ओरिजिन है यानी 0 0 जो ये दिया हुआ है यहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है। ये पास जब वर्ड लिखा है इसका मतलब दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बट दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यू आर टू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसका फिगर बनाने की रफ फिगर बनाने की कोशिश करती हूँ देन इट वुड बी लाइक दिस कि अगर सपोज करो ये कर्व है y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5, तो इसका ये जो टेंजेंट है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, एक तो ये आ गया, ठीक है, और हो सकता है कि ये कर्व ऐसे हो तो एक पॉइंट यहाँ पर भी आपके पास है ना, यहाँ पर भी अगर देखें तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है दैट इज पासिंग थ्रू द रीजन, तो हो सकता है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स हो। तो ये पॉइंट जो है आपको x नॉट y नॉट, अगर हम इसको मैं इसको x नॉट y नॉट या h के रख लेती हूँ, सपोज करो h के जो है this is the point of contact I have taken and I have to find out this point HK, okay? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A मैंने HK लिया और ये पॉइंट आपका 0 0 ओरिजिन है जहां से आपका ये टेंजेंट जो है वो पास कर रहा है। तो अब ये देखो ये जो पॉइंट HK है that point lies on this curve, this point lies HK lies on this curve, तो ये पॉइंट HK इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, H और K की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, H X की जगह H और Y की जगह K, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आपका जो भी कर्व किया उसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल लीजिए। तो dy by dx करके ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। लेकिन आप ये देखिए टेंजेंट आपकी ये है, आपको टेंजेंट के 2 पॉइंट पता है, एक O और ये A आपने जो सपोज किया है। तो 2 पॉइंट अगर पता हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट OA क्या हो गया, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो इससे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई और dy by dx से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। एट पॉइंट HK है इसलिए x की जगह h और y की जगह k आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो ये आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx करके x की जगह h करके आया और ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका निकला। ये अब आपने इन दोनों को इक्वेट कर देना है, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ से भी आ गई, लेकिन k की वैल्यू तो यहाँ भी आई थी जब हमने h और k की वैल्यू कर्व में पुट की थी। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बाय 1 and 4, बाय 1 and 4। तो आपका 12h क्यूब minus 10h5 is equal to 4h cube minus 2h5 आ गया। So this implies 12h cube minus 4h cube 8h cube minus 10h5 plus 2h5 यानी minus 8h5 equal to 0. So what is common here from here? 8h cube is common. 1 minus h square is equal to 0. This implies h is equal to 0 क्योंकि h cube is equal to 0 या फिर 1 minus h square is equal to 0, तो h is equal to plus minus 1। अगर आप h की वैल्यू, क्योंकि बिकॉज दिस इज द पॉइंट HK विच लाइज ऑन द कर्व, तो आप कर्व में इसकी वैल्यू पुट करके अगर h 0 है तो क्या k होगा, अगर h 1 है तो k क्या होगा, अगर h minus 1 है तो क्या होगा। तो एक पॉइंट यूज इन 1 कर्व का पॉइंट निकालने के लिए, एक तो 0 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 4 minus 2 2 आएगा, और अगर -1 पुट करते हैं तो -4 + 2, तो ये -2 आएगा। तो
these are the 3 points. These are the 3 points where the tangent to this curve is passing through the origin. ये 3 points हैं, ये आपके 3 points हैं, आपके 1 2 3 points हैं जहां पर एक तो 0 0 ही हो गया, यानी कि 0 0 यहीं पर आपका ये 3 पॉइंट 1 2 और ये 3 पॉइंट्स ऐसे. ये रफ डायग्राम, इट इज नॉट, इट मींस द एग्जैक्ट फिगर ऑफ दिस कर्व, फॉर दिस कर्व. ये आपको सिंबॉलिक शो किया मैंने. हाँ जी, in this question number 20 you are to find the equation of the normal at this point. at का मतलब point of contact is given to you और इस कर्व का निकालना है आपको. कर्व दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना dy/dx करके, ठीक है. और उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट किया, उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू, ये अगर m है तो m डैश आ गया -1/m, दैट इज -2/3m, ठीक है. अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कहाँ पर पॉइंट क्या है आपको दिया हुआ है. एट दिस पॉइंट x0 y0 is equal to am square am cube, that is y minus y0 is equal to m dash x minus x0. Put these values of x0 y0 and m dash and get the equation of normal. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व. ये आपका क्वेश्चन, ये कर्व है और इसका अगर ये हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल. तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, विच आर पैरेलल टू दिस लाइन. और ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है. तो अब आपको कर्व दिया हुआ है, लेकिन कर्व से हम स्लोप ऑफ किसकी निकालते हैं, टेंजेंट की. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगी हमारे पास. स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे dy/dx, दैट इज इक्वल टू 3x² + 2. इसको डिफरेंशिएट करके नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1/dy/dx, दैट इज इक्वल टू -1/3x² + 2. इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव. दिस इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल. जो लाइन दी हुई है वो नॉर्मल के पैरेलल है, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगी वो आप पहले यहाँ पर जो लाइन दी हुई है, गिवन लाइन है, उसकी भी स्लोप निकाल लीजिए. गिवन लाइन इज x + 14y + 4 = 0. इसको ax + by + c = 0 से कंपेयर करके आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल लीजिए. स्लोप ऑफ लाइन निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू -a/b, दैट इज इक्वल टू -1/b कितना है, 14, -1/14. दिस इज योर 2. ये आपका 1 है, ये हमने 2 निकाला. ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने 3 निकाला. अब ये स्लोप ऑफ, अब क्योंकि लाइन और नॉर्मल पैरेलल है and in parallel cases the slopes are equal, therefore slope of normal is equal to slope of line. और आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकाला था, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने यहाँ से निकाला था -1/3x² + 2. और स्लोप ऑफ लाइन यहाँ से ये निकला है -1/14. ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो आपके पास क्या आ गया, 3x² + 2 = 14. सो 3x² is equal to 12, x² is equal to 4. तो x आ गया +-2. यूज इट इन 1, इसको 1 में यूज कीजिए, एक बारी 2, एक बारी -2, ठीक है. अब आपके पास क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और आपके पास 2x कोऑर्डिनेट 2y कोऑर्डिनेट, यानी आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा. क्योंकि जब हम कर्व में पुट करते हैं तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलता है. तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लीजिए. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है आपको पता ही है, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है. ये आपकी m डैश है. x यहाँ से निकलेगा, कितना आया, x आपके पास +-2. y की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी, तो आपकी y, जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू -6 आएगी. यहाँ पर x की वैल्यू ये यहाँ पर
x की वैल्यू -2 रखिए, x की वैल्यू -2 रखिए, तो आपके पास -12 + 6 -6 आया, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखेंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास 18 आएगा। तो आपके पास ये एक पॉइंट, फिर ये स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप निकालिए उसको। By using this formula y minus y naught is equal to m into x minus x naught। एक बार x naught y naught ये है और m स्लोप ऑफ नॉर्मल, दूसरी बार x naught y naught ये है और स्लोप ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, this is also one of the important question you can see। Prove that the curves, there are two curves which cut at right angles if 8k square is equal to 1, यानी कि वो राइट एंगल्स पर कट करती हैं, तो ये कंडीशन आपके पास आनी चाहिए। तो एक कर्व अगर आपके पास ये है और दूसरा कर्व ये है, तो अगर ये राइट एंगल पर कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व्स का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पर जो आप दोनों के टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, दीज विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है। देन एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन their tangents will also be orthogonal, means they will also be perpendicular to each other। this concept will be used here in this question। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट कर्व, ठीक है, फर्स्ट कर्व। हाँ जी, फर्स्ट कर्व इज दिस एंड सेकंड कर्व इज दिस। इफ बोथ ऑफ दीज आर इंटरसेक्टिंग, तो हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब ये आपकी ये x की वैल्यू यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेगी, वो उसको सेटिस्फाई करेगी, कॉमन पॉइंट जो है। तो यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन दिस कर्व, तो आपने क्या किया, x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दिया एंड दिस इज y इज इक्वल टू k। तो y क्यूब इज इक्वल टू k, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू k की पावर 1/3, क्योंकि ये है y k की पावर 1। अगर आप दोनों साइड इसमें 1/3 कीजिए, इसमें भी 1/3 लीजिए, टेकिंग क्यूब रूट, इसमें टेकिंग क्यूब रूट अगर आप लेते हैं तो y की पावर 1/3, y की पावर 3 की पावर 1/3 और k की पावर 1 की पावर 1/3, तो y आ गया k की पावर 1/3। यूज इट इन 1, यूज इट इन 1, आप 1 में पुट कीजिए चाहे 2 में पुट कीजिए, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y की जगह k की पावर 1/3 और उसका पावर 2, तो x आ गया k की पावर 2/3। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके पास आया, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, दैट इज x k की पावर 2/3, y कितना है, ये है आपके पास k की पावर 1/3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब आपको ये निकालना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया एक तरीके से आपके पास, ठीक है। अब इस पॉइंट पर दोनों कर्व्स के टेंजेंट निकालने हैं फॉर कर्व 1, ठीक है, फॉर कर्व 1। हाँ जी, तो फॉर कर्व 1 क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं, इट मींस हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, y स्क्वायर का 2y dy/dx। तो dy/dx क्या आया, 1/2y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द फर्स्ट कर्व एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी, आप x की y की जगह k की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व आ गया। अब सेकंड कर्व क्या है, xy इज इक्वल टू k। अब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ यू वांट टू फाइंड आउट, सो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज, प्लस x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx आ गया आपके पास। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द सेकंड कर्व एट दिस पॉइंट, x और y की वैल्यूज यहाँ से पुट कीजिए, क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आपने पुट किया, तो ये आपके पास वैल्यू आई। तो टू कर्व्स आर गिवन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल टू -1। तो पहले वाला m1 1/2 k की पावर 1/3 एंड दिस इज -1/k रेज़्ड टू पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू -1। तो आपके पास क्या आया, -1 इज इक्वल टू -1 इंटू ये कर दिया 2 k की पावर 1/3, k की पावर 1/3, ठीक है जी। तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2k की पावर 2/3 हो गया, क्योंकि 1/3
प्लस 1/3, सेम बेस है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स विल बी एडेड 2/3। तो आप अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, मैं ऊपर लिख रही हूँ 1 इज इक्वल टू 2k की पावर 2/3 है, क्यूबिक हटाना चाहती हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये हो गया 2k की पावर 2/3, इसका भी क्यूब कीजिए आप, तो 1 क्यूब तो 1 ही रहेगा एंड 2 क्यूब मीन्स 8 और ये k की पावर 2/3 इंटू 3, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर, वट एवर यू आर टू प्रूव। यही प्रूव करना था कि अगर दो आपके कर्व परपेंडिकुलर है तो इस केस में ये आपके पास आना चाहिए। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 24 यू आर टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला एट दिस पॉइंट विच द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस गिवन टू यू। तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन दी है, आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है, और उसके लिए क्या होता है कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है, हमने किया विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है एज इट इज y स्क्वायर का 2y dydx और 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब यहां से कैलकुलेट करके dydx निकाला तो ये आ गया आपके पास xb स्क्वायर अपॉन y a स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया अब आपके पास। अब आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है x नॉट y नॉट, तो आपको टेंजेंट में वो पुट करना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में x और y की जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x नॉट y नॉट पुट किया हमने, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद दिस स्लोप, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए x माइनस एक्स नॉट। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको y नॉट a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो x नॉट और y नॉट स्क्वायर वाली टर्म्स हमको एक साइड कर लिया, और ये x नॉट और ये y नॉट इनको वी हैव टेकन टू द अदर साइड। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड द होल इक्वेशन विद a स्क्वायर b स्क्वायर, सबको मैं a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करने वाली हूँ। क्यों करूंगी, दैट यू विल कम टू नो वेरी सून। सो दिस इज a square b square a square b square a square b square and this is also a square b square, cancel, so you are left with x naught square a square minus y naught square upon b square is equal to x naught upon a square minus y naught upon b square। now this is 1, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये हाइपरबोला है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x नॉट y नॉट, वो हाइपरबोला का भी तो पॉइंट है, वो हाइपरबोला का पॉइंट है, देन इट विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन आल्सो। तो आप इसको नंबर 2 लिख के छोड़ने के बाद एज पॉइंट x नॉट y नॉट मींस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट lies on the hyperbola 1 also, therefore it must satisfy that equation, therefore x naught square upon a square minus y naught square upon b square equal to 1, यानी x की जगह हम x naught और y की जगह y naught पुट करेंगे। अब this is 3 using 3 in 2, ये देखिए x naught a square minus y naught b square की जगह आप 1 रख सकते हैं, so this is equal to 1 x naught upon a square minus y naught upon b square, और this is your equation of tangent। नॉर्मल के लिए आप खुद ही कीजिए, उसमें आप यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी ऐसे और इसमें ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, जो सिंपल आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही होगी आपकी। And student, this is example number 18 of NCERT book and this is also very important question. Find the equation of the tangent to this curve at the point where it cuts the x-axis। यानी कि आपको ये पता करना है कि ये सपोज करो ये कोई कर्व है, ये x-axis को यहाँ पर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर आपका टेंजेंट क्या है उसकी इक्वेशन निकालना है। तो बेटा जो भी ये पॉइंट है वहां पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, इज इट क्लियर। सो नाउ दिस इज योर कर्व एंड दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज द पॉइंट ऑफ द कर्व आल्सो। सो लेट दिस कर्व 1 intersects x axis at point x naught 0, y coordinate y it is 0, I have shown it, I have explained it।
तो आप y की जगह 0 रखिए, x की जगह x0 रखिए दिस। सो आपको पता है, मैंने बताया था फ्रैक्शन कब 0 होता है, जब न्यूमरेटर 0 होता है। तो इसमें x0 minus 7 is equal to 0, x0 7। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x0 0 means 7 0। नाउ you are to find out the equation of the tangent, and we need two things to find out the equation of the tangent. One is the point of contact that we have calculated, the other one is the slope of the tangent that we will find out now. Now this is the curve given to you. Slope of the tangent you need to differentiate it by applying the quotient rule. मैंने क्या किया, सबसे पहले x माइ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज x minus 7, दिस इज व्हाट इज दिस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। दिस इज 2x माइनस 5। ओके, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह 7, दिस इज 2 into 7 minus 5। ओके, हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x1 और इसको आप एज इट इज लिखिए, मतलब इसको एज इट इज लिखना है। ओके, अब इसके बाद आपने क्या किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज लिखा और स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर किया। ओके, नाउ आफ्टर दिस पुट द वैल्यू, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 7 0, तो 7 0 पुट किया, जहां जहां x है 7, x की जगह 7 पुट कर दिया आपने। तो ये यहाँ भी, ये भी, यहाँ भी, तो 7 minus 7 0 होता है, ये तो गया, ये तो खत्म हो गया। बचा क्या, 7 minus 2 5, 7 minus 3 4, 7 minus 2 5 का स्क्वायर, 7 minus 3 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 4 4 5 कैंसिल हो गए, 1/20। ये स्लोप आ गई। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y0 is equal to m into x minus x0। so y minus y0 is 0, m is 1/20, x minus 7। so this is your 20y is equal to x minus 7। this is your equation of the tangent। so now with this question your this topic is over।